Hello friends, welcome on your Pedia. I am Vishal Sharma, and friends, in today's class we are going to study very important topic of IC engine, that is combustion in IC engine. Okay, how combustion happens in IC engine. Okay, what is combustion is all about. Okay, what is normal combustion, what is abnormal combustion. You know, abnormal combustion is also known as knocking. So what is knocking in SI engine? What are the various factors which influence knocking in SI engine? Okay, so all these things friends we will study in today's class, combustion in SI engine. Okay, you will be able, after listening this class friends, you will be able to answer all type of objective questions related to combustion in SI engine. Okay, so friends, I welcome you all on your PDF platform. So let's begin our today topic. Okay, so combustion in SI engine. Friends, first let's understand what is the meaning of combustion. Okay, so what is meaning of combustion friends? Combustion means it is basically a kind of chemical reaction between the molecules of the fuel and oxygen. Okay, when the molecules of the fuel, like fuels are made up of hydrocarbons na? Like all fossil fuel, which we use in our engine, liquid fuels basically. So they are hydrocarbons. Okay, so they are compound of hydrogens and carbon. Okay, and they are in some formula. So those elements like carbon and hydrogen, when they combined with oxygen, so there will be liberation of the energy. Okay, so heat will generate, and due to that liberation of the energy, the gas temperature will start increasing. That gas mixture which is present inside the cylinder, that mixture temperature will start increasing, and due to the increase in the temperature of the gas, its pressure will also start increasing. Okay, and as the pressure will increase, so what will it will do? Okay, it will simply you push your piston to move in the downward direction, means we will have a expansion stroke, or that is also known as a power stroke. Okay, so what is power stroke, what is expansion? I think now you will be able to answer what is combustion basically. Okay, so you can refer this also. Okay, I think it is not visible, don't worry. So combustion is a chemical reaction in which some element of the fuel like hydrogen, carbon, it combines with oxygen and liberating huge amount of energy. Okay, and with that huge amount of energy, that energy will be supplied to the, or it will go into the gases, and it will increase the temperature of the gases, and pressure also increases, and that huge pressure will push the piston to move in the downward direction, and we will get a power stroke. Okay, so that is about combustion. And you can see friends this diagram also. Okay, it is a four cylinder engine, multi-cylinder engine, and you can see like combustion is going on. I think can you after viewing this slide, can you answer what is the firing order? What is the firing order in this case? Can you answer friends? Yes, the firing order is something like this: 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2. This is a firing order. Okay, and we will keep this firing order just to maintain, so that there will be minimum vibration inside the engine. Okay, in which sequence combustion is carrying out? Combustion is what we know in which sequence combustion is carrying out in the multi-cylinder engine, that is known as the firing order. Okay, and firing order is not like 1 2 3 4, it is like 1 3 4 2, so that we will have a evenness of the torque. Okay, and when torque will be evenness, obviously vibration will be less. Okay, so combustion is what I think you will be able to answer. Okay, next thing comes friends, there are two type of, you can say, mixture or two type of combustion which in IC engine we can see or we can observe. One is the homogeneous combustion, another one is the heterogeneous combustion. Homogeneous combustion means a combustion which takes place in a homogeneous mixture. And what is heterogeneous combustion? A combustion which takes place in a heterogeneous mixture. Okay, so main thing is we need to understand what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture, and in which case, like in auto engine or petrol engine we are having homogeneous mixture, or in diesel engine we are having homogeneous mixture. Okay, so thing is, what is homogeneous? Homogeneous means when the air fuel ratio is uniform throughout the mixture, that is known as a homogeneous mixture. What is air fuel ratio friends? I think somewhere you studied air fuel ratio. Okay, air fuel ratio. Okay, so it is the part of the air to the part of the fuel, that is known as air fuel ratio. Okay, in case of petrol engine, you know, there is a device that is known as carburetor, and the function of the carburetor is to provide the air fuel mixture. Okay, and it basically provide a mixture that which is having constant air fuel ratio. Almost. Okay, in some like idling range, crushing range, it will be like different, no doubt, but almost in a normal operating range, carburetor provide a constant homogeneous mixture to the engine, because there is a separate device, carburetor. But in diesel engine friends, you know, only the suction of the air is takes place inside the combustion chamber.
In suction stroke, only air will be intaken. Okay, and then its compression will start. Okay, and fuel will be injected. Fuel will be injected in the compressed air. So can you imagine, friends, like in which case we are having homogeneous mixture? Petrol engine or diesel engine? Yes, in petrol engine we are having homogeneous mixture. Almost the mixture is homogeneous, mixture is uniform, you can say a uniform air fuel mixture we are having in case of petrol engine. But in case of diesel engine, we are not having any uniform air fuel mixture. The mixture air fuel ratio is not uniform. Somewhere in some local regions it is like rich mixture, in some local regions it is lean mixture. Overall you can say it is a rich or lean, that is different thing, but it is not uniform. Okay, the mixture is not uniform in case of diesel engine or CI engine, compression ignition engine. The mixture is not uniform. It means the combustion which happens in diesel engine, that is heterogeneous combustion, and the combustion which happens in petrol engine, that is the homogeneous combustion. Okay, I think you will be able to answer what is homogeneous combustion and what is heterogeneous combustion. Okay, next thing which came in our mind, friends, there are two type of combustion. What is the normal combustion? What is the abnormal combustion? What is the normal combustion means? Normal combustion means if everything like a flame, like when spark ignites, due to the spark ignite, flame front will generate, and that flame front will travel, and it will like due to the traveling it will start like the other mixture, unburnt charge will also be combust by taking heat from that, you can say, flame front. Okay, that is normal combustion. We will discuss in detail about normal combustion. Okay, and if a combustion is not happening normally, okay, that is known as a abnormal combustion. What is simply person क्या होता है, हम बोलते हैं कि यार person normal नहीं है, it means normal नहीं तो क्या है वो abnormal है. So what is meaning of normal and abnormal? Normal means if everything, like we will study normal combustion in detail. What is normal combustion? There are particular stages of normal combustion. Okay, and if combustion is happening through those stages, okay, so that is a normal combustion. And if it's not happening like this, that is known as abnormal combustion. And abnormal combustion is also known as knocking in SI engine. Abnormal combustion को ही हम क्या बोलते हैं? That is known as knocking in SI engine. So we will study in detail what is normal combustion and what is abnormal combustion. Okay, so there are two type of combustion, normal and abnormal. If everything is happening throughout these like particular stage, like first stage, second stage, third stage, there are three stages in normal combustion. Okay, if everything is happening through those stages, that is normal combustion. If not happening like this, that is known as abnormal combustion. Okay, so first we need to understand what is normal combustion. Okay, how combustion, what is combustion we know, but how combustion is actually occurring in the IC engine, that is important. Okay, so first we will study in today's class, friends. Our focus is to study on combustion in SI engine. Okay, combustion in SI engine, knocking in SI engine we will study. In next class, surely we will study combustion in CI engine also. So there are only two engines we will study, normally SI engine and CI engine in IC engine part. So both part we will discuss, and through discussing the combustion in SI and CI engine, we will discuss in detail about knocking in SI and knocking or detonation in CI engine also. Okay, what are various factors also which influence knocking and detonation in SI and CI engine. Okay, so let's move to, friends, combustion in SI engine. Okay, so what is the meaning of combustion? We know. So friends, what do you know? In SI engine there is a device which basically initiate the combustion. Okay, SI engine में एक device होता है जो क्या करता है, जो combustion को क्या करता है, initiate करता है. That is known as a spark plug. उसको हम क्या बोलते हैं? SP. SP मतलब spark plug. ये spark plug क्या करता है भाई? ये initiate करता है. Spark plug क्या करता है? ये initiate करता है किसको? combustion को. ठीक है, तो जैसे ही spark plug क्या करेगा? Spark देगा. Spark plug क्या करेगा? Spark देगा. तो क्या होगा? एक फ्लेम फ्रंट जनरेट होगा. ठीक है, इनिशियली इट विल टेक सम टाइम. इट इज नॉट लाइक दैट यू हैव गिवन दिस स्पार्क एंड इमीडिएटली इट विल इग्नाइट. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, एनी मिक्सचर, like there is a combustible mixture inside the engine, no doubt, but this will also take time to ignite. So you are giving spark and it will take some time to basically ignite. Okay, that time is known as ignition lag. उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ignition lag. बड़े अच्छे से आपको इसको समझना है. What is ignition lag? Okay, that is basically, that depends on the property of the fuel, ना? That depends on the nature of the fuel. That ignition lag will be different for different fuel because that is majorly depend on the property, nature of the particular fuel. Okay, but any fuel will have some amount of the ignition lag, or no doubt. However, that time, basically ignition lag we measure in time. Okay, that time is in fraction. ये क्या होगा? बहुत fraction of seconds में होगा, no doubt. It is in fraction of second, but it is not zero.
So ignition lag will be there. It is not zero, but it is a very small amount of time. Okay, fraction of second you will have. So first thing, the spark plug, that is a basically a particular device which will initiate the combustion process. How it will initiate? It will initiate by giving the spark. Okay, how it is giving spark, that is a different concept, friends. You will study in like different battery ignition system and magneto ignition system, how this spark is basically initiated. That is a separate chapter. Okay, so I think you somewhere you have studied. So with the help of this spark plug, spark is initiated, and this spark, friends, that spark will basically, it will reach towards nearby you can say gas molecules, okay, which are comparatively at high pressure, high temperature due to the compression. Okay, so when it will reach to the fuel, air fuel mixture, it will take some time to actually, you can say, ignite. Actually ignite means there is a generation of flame. When the fuel will ignite, it will generate some flame. Okay, so flame will be generated like this. If you will see, when fuel will be, you can say, ignited, the flame will, it is not like that this, but you can like in this diagram also you can I think you can observe or analyze, there will be generation of the flame. Okay, so mixture will take some time, it will take some time to actually generate a flame. Okay, and that time between the giving of the spark and first flame generation, that time is known as the ignition lag. Okay, इसे हम क्या बोलते हैं, ignition lag बोलते हैं. तो जैसे ही इग्निशन लैग कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लेम विल बी जनरेटेड एंड एक फ्लेम फ्रंट विल प्रोपेगेट, फ्लेम फ्रंट बन जाएगा, एक फ्लेम फ्रंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, फ्लेम फ्रंट विल बी जनरेटेड एंड देन दैट फ्लेम फ्रंट विल प्रोपेगेट. वो फ्लेम फ्रंट क्या होगा, आगे प्रोपेगेट करेगा, मींस आगे मूव करेगा, मींस स्प्रेड करेगा. फ्लेम फ्रंट क्या करेगा, स्प्रेड करेगा थ्रू आउट दी combustion chamber. Okay, and when it will spread and it will reach to the unburnt charge, and when it will reach to the unburnt charge, there will be transfer of heat, na, and there will be diffusion is simultaneously happening. In heterogeneous combustion, friends, in homogeneous combustion, because in SI engine homogeneous combustion is taking place, in SI engine the heat transfer, or you can say combustion, is taking place by the heat transfer and the diffusion of the molecules. जो gas molecules हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, heat transfer हो रहा है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन. जो पार्टिकल्स हैं जो इग्नाइट हो गए, तो वो उनमें क्या होगा, एक रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन मिलेगा आपको, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन एंड हीट ट्रांसफर, उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अनबर्न्ट चार्ज. ओके, एंड व्हेन that temperature will reach to the like you can say ignition temperature of the fuel, it will also auto ignite. Okay, and in that manner the flame will spread throughout the combustion chamber. Okay, so that is basically the second stage. Okay, in third stage, when the fuel will be completely burnt, there will be after burning. Okay, the flame speed will decrease. Okay, combustion will stop, you can say. Okay, and there will be like, you can say, expansion of the piston, that is known as the after burning or the expansion stroke which you will get. Okay, the stage is known as after burning stage. So what you need to know, friends, what is the difference between like normal and abnormal combustion? I think some of the point crunch you need to understand. Okay, what is that crunch, friends? So there is some spark plug, which will basically स्पार्क, गिव स्पार्क टू द फ्यूल. वो क्या करेगा, स्पार्क देगा. ठीक है, जैसे ही स्पार्क देगा तो क्या बनेगा, एक फ्लेम फ्रंट बन जाएगा. इस स्पार्क देने के बीच में, और एक फ्लेम फ्रंट बनने के बीच में जो टाइम होता है, द टाइम गैप बिटवीन द जनरेशन ऑफ द स्पार्क टाइमिंग एंड बिटवीन द जनरेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लेम, दैट इज नोन एज इग्निशन लैग. ठीक है, तो उस इग्निशन लैग के खत्म होने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक फ्लेम फ्रंट मिलेगा. क्या मिलेगा, एक, यू विल गेट ए फ्लेम फ्रंट. दिस रेड कलर यू कैन सी, दैट इज नोन एज ए फ्लेम फ्रंट. मतलब फ्लेम मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी आपको, एक फ्लेम मिल जाएगी, दैट इज नोन एज फ्लेम फ्रंट. ओके, सो दिस फ्लेम फ्रंट विल प्रोपेगेट, ये प्रोपेगेट करेगी, मतलब स्प्रेड होगी, ऐसे ऐसे करके क्या होगी, आगे आगे क्या होगी, स्प्रेड होगी. दिस फ्लेम फ्रंट विल स्प्रेड इन दी कंबशन चैम्बर. ठीक है, तो जैसे जैसे स्प्रेड होगी, फ्रेंड्स, तो क्या करेगी, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट एंड देयर विल बी डिफ्यूजन. सो एक्चुअली ये फ्लेम फ्रंट होता क्या है, अगर आप कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्लेम फ्रंट, एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू विल फाइंड व्हाट इज फ्लेम फ्रंट. फ्लेम फ्रंट बेसिकली वो जोन होता है, सेपरेटिंग जोन होता है बिटवीन द अनबर्न्ट चार्ज एंड बिटवीन द ब्रंट चार्ज. जो इधर क्या है, देखो फ्लेम फ्रंट के इधर क्या है, ब्रंट मिक्सचर. ये क्या है, ब्रंट जो जल चुका है. इधर क्या है, अनबर्न्ट चार्ज. ये क्या है, अनबर्न्ट चार्ज. सो ए जोन विच सेपरेट्स अनबर्न्ट चार्ज और अनबर्न्ट मिक्सचर विद द ब्रंट मिक्सचर, दैट इज नोन एज फ्लेम फ्रंट. उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम फ्रंट. ठीक है, तो ये फ्लेम फ्रंट क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है.
फ्लेम फ्रंट क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे मूव कर रहा है नॉर्मली, अगर ये लास्ट एंड तक, लास्ट मिक्सचर तक, जो लास्ट आपका मिक्सचर प्रेजेंट है उस तक भी हीट यही पहुंचाता है, मतलब उसका भी जो कंबशन है वो बाय टेकिंग हीट फ्रॉम फ्लेम फ्रंट ही हो रहा है, दैट इज नॉर्मल कंबशन। If the combustion of the last charge, any charge, it is last or anywhere, it is present in the combustion chamber. If the combustion is taking place by taking heat from this flame front only, that is the normal combustion. Okay, उसे हम क्या बोलते हैं, normal combustion। मतलब ये flame front क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेट करते करते कहां तक पहुंच गए, लास्ट एंड तक पहुंच गया, ठीक है। और लास्ट एंड पे भी जो मिक्सचर है उसने इसका वेट किया, जो लास्ट एंड पे जो मिक्सचर था उसने क्या किया, उसने वेट किया, ठीक है। वेट करने के बाद जब ये फ्लेम फ्रंट वहां पहुंच गया, देन इट विल स्टार्ट इग्नाइट, वो भी क्या हो गया, इग्नाइट हो गया, और उसमें भी क्या हो गई, कंबशन रिएक्शन शुरू हो गई, दैट इज नॉर्मल कंबशन। ओके, बट अगर ये वेट ना करे, जो ये लास्ट वाला चार्ज है ये वेट ना कर पाए, तो क्या हो जाएगा, नोकिंग हो जाएगी, उसे हम क्या बोल देंगे, अब नॉर्मल कंबशन। सिंपली फ्रेंड्स इट इज लाइक दिस, से अगर एक कोई बच्चा है, से अगर 100 लोग बैठे एक लाइन में, और जो लास्ट में जो बच्चा है 91 से लेके 100 तक, जो वो 10 बच्चे हैं वो बिल्कुल भूखे हैं, मतलब उनको इतनी ज्यादा भूख लगी है कि उनको खाना बड़ी जल्दी उन तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बट जो जो फर्स्ट पर्सन है, जो शुरू में जो लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, जो फूड डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो बड़ा स्लोली डिलीवर करेंगे, फूड क्या कर रहे हैं, बड़ा स्लोली, बड़ा आलकस में धीरे 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 डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं जो भूखे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब तक फूड उन तक पहुंचेगा उससे पहले ही वो खुद भड़क जाएंगे, मतलब वो खुद क्या हो जाएंगे, ऑटो इग्नाइट हो जाएंगे, फ्यूल के मतलब फूड के उन तक पहुंचने से पहले वो क्या हो रहे हैं, ऑटो इग्नाइट हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज अब नॉर्मल कंबशन। ओके, अगर फूड उन तक पहुंच गया और वो शांत बैठे हैं, तो दैट इज नॉर्मल कंबशन, मतलब कि ये जो जो फ्यूल पार्टिकल थे ये ऑटो इग्नाइट नहीं हुए, मतलब इन्होंने आसपास से सिलेंडर बोल से, जो सिलेंडर की बोल्स हैं या किसी और तरह से, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज नॉट रीच इट्स ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, वो अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे रीच नहीं किया है, और इन फ्यूल्स पार्टिकल ने क्या किया, खुद इन्होंने क्या किया है, हीट जनरेट नहीं की, तो यहां पे क्या होगा, क्या होगा, नॉर्मल कंबशन होगा। बट अगर यहां पे जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं, यहां पे जो फ्यूल पार्टिकल्स है ये क्या हो जाए भाई, अगर ये ऑटो इग्नाइट हो जाए, ठीक है, ऑटो इग्नाइट हो सकते हैं। इफ दिस फ्लेम फ्रंट इज स्लो, अगर फ्लेम फ्रंट क्या है, स्लोली इन तक मूव कर रहा है, और या फ्लेम फ्रंट जैसे भी नॉर्मली जैसे भी रीच कर मूव कर रहा है, उस फ्लेम फ्रंट के पहुंचने से पहले ही अगर ये जो पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली इट इज ए कंबस्टिबल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर है, अगर ये क्या हो जाए, ये भी इसका जो टेम्परेचर है, द फ्यूल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट हियर, एयर फ्यूल मिक्सचर दैट इज प्रेजेंट हियर, इफ इट विल रीच द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बिफोर रीचिंग द फ्लेम फ्रंट, फ्लेम फ्रंट के यहां तक पहुंचने से पहले ही अगर ये पॉइंट जो फ्यूल है ये क्या हो जाए, अपना टेम्परेचर इनका बढ़ जाए, और इफ दैट टेम्परेचर रीचेस देयर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, दे विल ऑटो इग्नाइट, वो क्या हो जाएंगे, ऑटो इग्नाइट हो जाएंगे, मतलब सेल्फ इग्नाइट हो जाएंगे, ठीक है। और उसी सेल्फ इग्निशन की वजह से क्या होगी, नोकिंग हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ इग्निशन, ऑटो इग्निशन और प्री इग्निशन यू कैन से, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, नोकिंग हो जाएगी। नोकिंग मींस, अब देखो आप तो एक फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करवा रहे थे ऐसे, आप तो एक फ्लेम फ्रंट, ये तो नॉर्मल फ्लेम फ्रंट था, ये क्या था, नॉर्मल फ्लेम फ्रंट, इट्स लाइक दिस, ओके, एक नॉर्मल फ्लेम फ्रंट था जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। लास्ट मिक्सचर तक, लास्ट मिक्सचर तक ये क्या कर रहा है, नॉर्मली मूव कर रहा है, दैट इज नॉर्मल कंबशन, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंबशन, ठीक है। बट अगर क्या हो, अगर इसके पहुंच, जब तक ये पहुंच रहा है, ठीक है, जब तक ये पहुंच रहा है, उसके पहुंचने से पहले यहां पे जो मिक्सचर था, यहां पे जो मिक्सचर था ये क्या कर गया है, ऑटो इग्नाइट कर गया है, ये क्या कर गया है, ऑटो इग्नाइट। ऑटो इग्नाइट मींस यहां पे देयर विल बी अनदर फ्लेम फ्रंट जनरेटेड, एक तो फ्लेम फ्रंट ये था जो इधर मूव कर रहा है, एंड ड्यू टू द ऑटो इग्निशन ऑफ दीस फ्यूल मिक्सचर्स देयर विल बी another one more flame front generated, और ये flame front किधर ट्रेवल करेगा, obviously it will move towards the unburnt charge, ये भी unburnt charge की तरफ मूव कर रहा है, this will also move towards unburnt charge, okay, there are, simply you can say there are two flame front, one is moving towards it, another is moving in this direction, so obviously they will collapse, ये क्या होंगे, कहीं ना कहीं पे क्या होंगे, ये कोलैप्स हो जाएंगे, दैट कोलैप्सिंग इज नोन एज द नोकिंग, इसी को क्या बोलते हैं, नोकिंग, क्योंकि जब ये दो फ्लेम फ्रंट व्हेन दे विल कोलैप्स विद ईच अदर, तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ द प्रेशर पल्सेस, ह्यूज प्रेशर पल्सेस विल बी जनरेटेड, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर जो कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर के अंदर जो गैसेज है, देयर विल बी लाइक कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ द गैस इनसाइड द कंबशन चैम्बर, मतलब गैस क्या करेगी, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का मतलब क्या है, द गैस which is present inside the combustion chamber, it will simply start vibrating, वो क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, और जब वो गैस स्टार्ट करेगी वाइब्रेट करना, obviously it will starts vibrating your engine valves also,
जो इंजन की जो वॉल्स हैं वो भी क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू करेंगी। ओके, और जब ये हाई प्रेशर पल्सेस जब ये ब्रस्ट होंगे एक दूसरे में, तो जहां पे ये इंपिंज करेंगी, जहां पे क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, दे विल बेसिकली रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम द पिस्टन। जहां जिस पार्ट में ये ब्रस्ट होंगी, तो उस हाई प्रेशर पल्सेस की वजह से जो पिस्टन का जो सरफेस है वहां से कुछ मटेरियल क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे बम फटता है तो क्या होता है, सब कुछ उड़ जाता है। ऐसे ही जब ये दो प्रेशर पल्सेस जब ये एक दूसरे में क्या होंगी, जब ये क्या करेंगी, कोलैप्स करेंगी, तो देयर विल बी सम डैमेज over the piston inside the combustion chamber. Okay, so basically that is not accepted. Okay, ये कभी भी डिजायरेबल नहीं होता। नोकिंग इन द इंजन दैट इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन द फेलियर इनसाइड द इंजन। एक तो पावर लॉस होगा, ह्यूज पावर लॉस, क्योंकि आप तो चाह रहे थे कि पावर आपको ऐसे मिले, आपको तो पावर स्ट्रोक ऐसे चाहिए ना, बट एक फ्लेम फ्रंट इधर मिल रहा है और पावर क्या हो रहा है, प्रेशर पल्सेस जनरेट हो रही है, वो आपके इंजन को तो डैमेज कर ही रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है भाई, देयर विल बी लॉस ऑफ पावर, ह्यूज लॉस ऑफ पावर। Okay, that is not desirable. So what are the effects of the abnormal combustion? Power loss, damage to the engine. These are the major effects. Okay, so obviously it is not acceptable, it is not desirable inside the combustion chamber. Okay, so I think you will be able to answer what is normal combustion, what is abnormal combustion. Obviously you need not to appear in conventional paper. आपको किसी conventional paper में नहीं जाना है, इसलिए मैं आपको कोई टेक्स्ट नहीं दिखा रहा हूं कोई इतना बड़ा, मैं आपको करंट से बता रहा हूं, निचोड़ बता रहा हूं। ठीक है, that will help you to solve answer any kind of objective questions. Okay, कोई भी objective question यहां से अगर आ जाता है, you will be easily able to answer. That is my aim. Okay, so what is normal combustion, what is abnormal combustion? I think you will be able to answer. इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, देखो ब्रंट चार्ज है, ये जो ब्रंट हो चुका, ठीक है, ये क्या है, फ्लेम फ्रंट, ये क्या आपका फ्लेम फ्रंट, ये क्या आपका अनबरंट चार्ज, ये क्या आपका अनबरंट चार्ज। इसको जो अलग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम फ्रंट, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम फ्रंट। ओके, तो ये कुछ इस तरह से क्या है आपका फ्लेम फ्रंट, एक फायर ही है एक तरह से, ये फायर क्या बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मल कंबशन। ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मल कंबशन, और ये जो डायग्राम था आपका सेकंड वन, ये क्या था आपका अब नॉर्मल कंबशन। और अब नॉर्मल कंबशन को ये हम क्या बोलते हैं, नोकिंग और डेटोनेशन। ठीक है, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, स्टेजेस ऑफ कंबशन। हम मूव करते हैं फ्रेंड्स स्टेजेस ऑफ कंबशन पे, कि स्टेजेस क्या क्या है कंबशन की। देखो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, दैट इज बेसिकली द थ्योरेटिकल डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है आपका, थ्योरेटिकल। ये कौन सा डायग्राम आपका, थ्योरेटिकल डायग्राम है। ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअल डायग्राम, बिकॉज एक्चुअल डायग्राम में कभी भी टीडीएस पे स्पार्किंग नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि स्पार्क प्लग कब स्पार्किंग शुरू करता है, इट विल गिव स्पार्क 10 to 15 डिग्री बिफोर द पिस्टन रीच टीडीसी। पिस्टन के 10-15 डिग्री, इवन 20 डिग्री तक भी, 15 से 20 डिग्री पर पहुंचने से पहले, टीडीसी पे पहुंचने से पहले हम क्या कर देते हैं, स्पार्क शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट दिस इज दी आइडियल और यू कैन से थ्योरेटिकल। ये क्या आपका थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पी थीटा डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं, क्रैंक एंगल, और पी थीटा डायग्राम बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम। ओके, तो क्या दिखा रहा है आपको, देखो यहां पिस्टन कहां पे है, ये कहां पे आपका बीडीसी, ये क्या है बीडीसी, ये क्या है टीडीसी, ये पॉइंट कौन सा है, टीडीसी। अगेन ये क्या है आपका बीडीसी, बीडीसी टीडीसी बीडीसी। ठीक है, तो बीडीसी से टीडीसी पे आएगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगी, तो मतलब प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, एकदम से ह्यूज प्रेशर राइज मिलेगा। व्हाई, ड्यू टू द कंबशन, स्पार्क होगी और कंबशन हो जाएगी तो प्रेशर राइज मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन। ओके, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, ये क्या हो गया हमारा थ्योरेटिकल। बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कैसे होता है ये समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन एक्चुअल। ये कौन सा है हमारा, एक्चुअल कंबशन इन एसआई इंजन। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो आप देख पा रहे हैं, दिस इज पी प्रेशर एंड दिस इज क्रैंक एंगल। प्रेशर वर्सेस एंगल, क्रैंक एंगल डायग्राम, सेम डायग्राम है। देखो ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज टीडीसी। ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, दिस इज टीडीसी। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, दिस लाइन फ्रेंड, जीरो जीरो क्रैंक एंगल, ये क्या आपका टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। ओके, और ये क्या आपका, अगेन इसको अगर 180 पे लेके जाना चाहोगे तो आप लेके जा सकते हो। तो इधर क्या बन जाएगा आपका बीडीसी, इधर क्या बन जाएगा आपका बीडीसी। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, देखो जब बीडीसी से आपका पिस्टन मूव करेगा तो क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और पिस्टन मूव करेगा कहां, टीडीसी की तरफ। तो एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे आके आप क्या करोगे, यू विल इनिशिएट द स्पार्क। आप क्या कर दोगे, स्पार्क को क्या कर दोगे, इनिशिएट कर दोगे। और ये नॉर्मली कितना होता है, मैंने बताया कितना होगा, ये 10 से 15 है, 15 से 20 डिग्री बिफोर द पिस्टन रीच टीडीसी। ये कितना है, 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री।
टीडीसी पे 15 से 20 डिग्री पहुंचने से पहले ही आप क्या कर देंगे, स्पार्क बिगिन कर देंगे। तो ए पॉइंट कौन सा है, ए इज द पॉइंट वेयर स्पार्क इनिशिएट, जहां पे स्पार्क शुरू हो जाती है। इट इज द पॉइंट वेयर स्पार्क विल बी गिवन, जहां पे आपने स्पार्किंग क्या कर दी, शुरू कर दी। ओके, ए इज द पॉइंट वेयर स्पार्क बिगिंस। ओके, अब बी क्या पॉइंट है भाई, ये जो बी पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बी पॉइंट कौन सा है, इट इज अ पॉइंट वेयर द फ्लेम विल जनरेट, जहां पे पहले आपको फ्लेम मिलेगी। It is a point where you will see the first flame front or you will see the first flame. B is the point where the basically mixture will ignite. A is the point where you will give the ignition, जहां पे आपने ignition दे दी, जहां पे आपने spark दे दी। A is the point where you have given the spark. B is the point where mixture ignites, जहां पे mixture ने क्या करती है, ignite शुरू कर दिया है। And you will see the first flame front. आप क्या देख पाएंगे, first flame front देख पाएंगे। Okay, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, ए और बी के जो बीच का जो टाइम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इग्निशन लैग। इसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है फ्यूल के नेचर पे। फ्यूल के किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्यूल। ओके, सो ए इज द पॉइंट वेयर स्पार्क विल बी गिवन, बी इज द पॉइंट वेयर यू विल सी दी फर्स्ट फ्लेम फ्रंट, वेयर यू विल सी दी फर्स्ट फ्लेम फ्रंट। ओके, अब यहां पे फ्लेम फ्रंट मिल गया, अब क्या होगा, इट विल स्प्रेड। फ्लेम फ्रंट क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। फ्लेम फ्रंट क्या करेगा, इट विल स्प्रेड। ओके, और जैसे जैसे ये स्प्रेड करेगा तो क्या होगा भाई, प्रेशर, कंबशन इनिशिएट होगा, कंबशन होता रहेगा, अनबर्न्ड चार्ज तक ये पहुंचता रहेगा और उसमें कंबशन होता रहेगा। सो इट विल लाइक प्रेशर विल इंक्रीज इनसाइड द कंबशन चैम्बर। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा और ये लास्ट चार्ज तक पहुंचेगा। जब तक लास्ट चार्ज तक पहुंचेगा तब तक क्या होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पे मान लीजिए, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। अब यहां पे ऐसा नहीं कि कंबशन खत्म हो गई है, सी इज नॉट द पॉइंट वेयर यू विल से कंबशन एंड्स, ऐसा नहीं है। सी इज द पॉइंट वेयर यू विल गेट द मैक्सिमम प्रेशर। सी वो पॉइंट है जहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर। उसके बाद भी आपको क्या होगा, कंबशन होगा, बट वो कंबशन क्या होगा, दैट इज नोन एज आफ्टर बर्निंग। कुछ चार्ज है, क्योंकि उसके साथ साथ क्या हो गया, देखो टीडीसी पे पहुंचने के साथ अब पिस्टन आके रुकेगा तो नहीं, पिस्टन कहां मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स बीडीसी। तो जैसे जैसे वो बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एक्सपेंशन, क्योंकि हमें पावर स्ट्रोक मिलना शुरू हो जाएगा और वो क्या होगा, हमें प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो वन पॉइंट यू विल गेट वेयर यू विल गेट मैक्सिमम प्रेशर, जहां पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द कंबशन चैम्बर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी पॉइंट। तो ये तीन पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट हमें स्टेज बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्पार्क, इनिशिएशन ऑफ द स्पार्क। ओके, बी पॉइंट क्या है, ignition, first flame, you will see the first flame. Okay, the fuel will ignite basically and you will see the first flame front. Okay, c कौन सा पॉइंट है, the point where we will get maximum pressure, जहां पे हमें क्या मिलता है, maximum pressure. Okay, these 3 points are clear. Okay, and if these 3 points are clear, easily you can say that how many stages are there in the combustion of the SI engine. Okay, if anybody will ask you how many stages of combustion are there in SI engine, 3 stages. कितनी stages होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज कौन सी होती है, ए से बी। ए टू बी क्या है, फर्स्ट स्टेज। बी टू सी क्या है, सेकंड स्टेज। और सी के बाद यहां से लास्ट, ये क्या हमारी थर्ड स्टेज। ओके, ए टू बी फर्स्ट, बी टू सी सेकंड, और सी से आगे ये क्या है, हमारी हमारी कौन सी है, थर्ड स्टेज। ओके, anywhere it is not like that, here you can mention, anywhere you can mention a D, it is not like this. Okay, obviously it will be before reaching the piston, you can say बीडीसी, पिस्टन के बीडीसी पे जाने से पहले ही डी पॉइंट आएगा। डी पॉइंट मतलब जहां पे अब फ्यूल पूरा चल चुका है, पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो क्या है, अब कोई भी अनबर्न्ट मिक्सचर नहीं है। डी पॉइंट क्या है, इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो अनबर्न्ट मिक्सचर प्रेजेंट इनसाइड द इंजन, जहां पे पिस्टन के अंदर कोई भी अनबर्न्ट चार्ज नहीं बचा है। ओके, सो ए टू बी, बी टू सी टू डी, दीज आर दी 3 स्टेजेस ऑफ द आईसी इंजन। इस ए टू बी स्टेज को क्या बोलते हैं अभी, ए टू बी स्टेज इज नोन एज इग्निशन लैग। ए टू बी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग। बी टू सी स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम, फ्लेम प्रोपेगेशन। बी टू सी को क्या बोलते हैं, फ्लेम प्रोपेगेशन। और सी टू डी को क्या बोलते हैं भाई, दिस सी टू डी, दिस इज नोन एज आफ्टर बर्निंग। सी टू डी को क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्निंग। So these are the 3 stages of the combustion in SI engine. Okay, I think from this you will be able to answer what is ignition. Okay, what is ignition lag. Okay, and many objective questions you will find in all type of examination like SSC, engineering services, and even in GATE also. What is ignition lag. Okay, so let's move to next discussion, friends. Factors influencing the flame speed.
पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी फ्लेम स्पीड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. व्हाट इज फ्लेम स्पीड? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. ओके, सो फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, लाइक दिस इज द फ्लेम फ्रंट. ये क्या हमारा फ्लेम फ्रंट है, ये क्या हमारा फ्लेम फ्रंट है. ओके, और ये फ्लेम फ्रंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इट इज मूविंग. ये फ्लेम फ्रंट क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है. ये क्या है, नॉर्मल कंबशन. ये क्या हमारी नॉर्मल कंबशन. ये क्या है, अनबर्न्ड चार्ज. ओके, और ये क्या हमारा चार्ज. ओके, सो एक नॉर्मल वेलोसिटी होती है फ्लेम की, ये वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी. ओके, ये जो फ्लेम है ना, जो आपको फ्लेम फ्रंट दिख रहा है, इट इज नॉट ए लाइक ए लाइन, इट इज बेसिकली एक सरफेस है. क्या है, एक सरफेस है. ठीक है, एक सरफेस है जो मूव कर रहा है. ठीक है, you can consider it as like hemisphere, but it is not like hemisphere, but it is like a hemisphere you can consider. But what I want to say friends, it is not a line, or it is not a basically plane surface, it is like a hemisphere, something like this. Okay, it is something like this. Okay, so flame front is basically moving. Okay, so the velocity or speed that is normal to this flame front, that is known as a flame front speed. इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम फ्रंट की स्पीड या फ्लेम स्पीड बोल देते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ फ्लेम स्पीड. ठीक है, द फ्लेम स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई हैव टेकन दिस पैरामीटर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बताओ कि अगर फ्लेम स्पीड अगर ये ज्यादा होगी, तो अगर ये ऑटो इग्नाइट होने से पहले ये इस तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा भाई, it will not auto ignite. Like I told you ना, there are like 91 to 100%, 100 तक जो बच्चे बैठे हैं बहुत भूखे हैं. पहला बंदा क्या है, बड़ा सुस्त है, बड़ा लेजी क्या है, जो उनको डिलीवर कर रहा है फूड, बड़ा स्लोली डिलीवर कर रहा है. अगर वो बड़ा फास्ट डिलीवर कर रहा हो भाई, तो वो क्या करेंगे, वो शांत रहेंगे. चाहे उन तक देर तक भी पहुंचे, बट वो क्या रहेंगे, शांत रहेंगे. मतलब वो ऑटो इग्नाइट नहीं होंगे. सेम लाइक दिस फ्रेंड्स, अगर फ्लेम फ्रंट ज्यादा होगी, तो इनके ऑटो इग्निशन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. ठीक है, बट लाइक देयर आर सम ऑफ द फैक्टर विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी, जो फ्लेम स्पीड को तो बढ़ाते हैं, बट नोकिंग को क्या करते हैं, नोकिंग को कम नहीं करते. ओके, देयर आर सम फैक्टर विच विल इंक्रीज द फ्लेम स्पीड बट डज नॉट डिक्रीज द नोकिंग. ओके, ये हमें थोड़ा सा समझ में आएगा फ्लेम फ्रंट को समझ के, और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द नोकिंग. ओके, ये हम पढ़ेंगे. तो फ्लेम फ्रंट स्पीड क्या है, फ्लेम स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड which is normal to the flame surface, flame front surface. Okay, इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लेम फ्रंट स्पीड. ओके, एक्चुअल में ये जो आप मान के चलो कि ये कितनी होती है, अगर मैं आपको बताऊं रफली ये होती है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रफली कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एसआई इंजन के लिए. फॉर एसआई इंजन यू विल हैव ए फ्लेम फ्रंट स्पीड. अगर मैं आपको फ्लेम फ्रंट स्पीड बताऊं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बट ये भी हमें कहां पे मिलती है, that we will get at a equivalence ratio equal to 0.1 to 0.2. इक्वलेंस रेशियो 0.1 to 0.2 पे ही हमें मिलती है. हर तरह के एयर फ्यूल रेशियो पे थोड़ा ना फ्लेम फ्रंट स्पीड मिलेगी, बिकॉज दिस फ्लेम फ्रंट स्पीड डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. ये बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है. तो नॉर्मली व्हाट वी कैन से, वी विल गेट ए फ्लेम फ्रंट स्पीड of 40 centimeter per second at a equivalence ratio. This phi is known as the equivalence ratio. What is this equivalence ratio, friends? We will study, don't worry. So if equivalence ratio is in the range of 1.1 to 1.2, we will get a flame speed of 40 centimeter per second. कि इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो पर सेकंड ट्रेवल कर रही है, that is the flame speed. Okay, so what are various factor which basically influence flame speed? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लेम स्पीड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. One is turbulence, air fuel ratio, pressure, temperature, compression ratio, engines output, engine speed, and engine size. These are the factors which influence or which can have influence on the flame speed. Okay, अब सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, टर्बुलेंस. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, टर्बुलेंस. Okay, what is turbulence, friends? I think in fluid mechanics you have discussed. टर्बुलेंस मींस देयर इज ह्यूज इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल. जहां पे इंटरमिक्सिंग क्या है, पार्टिकल की बहुत ज्यादा है, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है, हीट ट्रांसफर क्या है, बढ़ जाता है. टर्बुलेंस की वजह से, इंटरमिक्सिंग की वजह से हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. अगर हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा तो व्हाट यू कैन से, हाउ फ्लेम इज स्प्रेडिंग. फ्लेम स्प्रेड क्यों कर रही है भाई, फ्लेम इज जनरेटेड ड्यू टू दी, यू कैन से इनिशिएशन ऑफ द स्पार्क. इनिशिएशन ऑफ स्पार्क की वजह से क्या हो रहा है, फ्लेम जनरेट हो रहा है. बट वो फ्लेम प्रोपेगेट क्यों कर रहा है भाई, why it is and how it is propagating, it is propagating by transferring heat and by due to the diffusion between the gas molecule. Brunt charge and unbrunt charge, उनके बीच में क्या हो रहा है, heat transfer हो रहा है. There is a brunt charge which is having high heat, there is a unbrunt charge which heat is less. So ये unbrunt charge क्या कर रहा है, अपना heat transfer कर रहा है और diffusion हो रहा है किसके बीच में, unbrunt और brunt charge के बीच में. Okay, so उसकी वजह से क्या हो रही है, flame जनरेट हो रही है, flame speed मिल रही है. ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, टर्बुलेंस ज्यादा है, इट मींस देयर विल बी ह्यूज इंटरमिक्सिंग, और अगर इंटरमिक्सिंग ज्यादा होगी
तो फ्लेम फ्रंट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस फ्लेम फ्रंट स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टर्बुलेंस बढ़ेगा तो फ्लेम फ्रंट स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, सेकंड थिंग इज एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है अभी, एयर फ्यूल रेशियो, देखो एयर फ्यूल रेशियो का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बताऊं, जैसे हमने पहले बात की थी कि मान लीजिए 15 पार्ट है एयर के और एक पार्ट है फ्यूल का, 15 पार्ट आर एयर, 1 पार्ट इज फ्यूल, दैट इज नोन एज एयर फ्यूल रेशियो, 15:1। ओके, अब देखो एयर फ्यूल रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लेम स्पीड पे, ये हम बात करते हैं। उसको समझने के लिए हम पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस रेशियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रेशियो की। फाई इज नोन एज इक्विवेलेंस रेशियो। फाई को क्या बोलते हैं भाई, ओके, सो फाई क्या होता है हमारा इक्विवेलेंस रेशियो, दैट इज एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो, ओके, डिवाइड बाय स्टिक्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। So friends, what is equivalence ratio? Equivalence ratio is the ratio of the actual fuel air ratio divided by the stoichiometric fuel air ratio. Okay. So what you can say, like if the actual fuel air ratio, अगर actual fuel air ratio कितना है, मान लीजिए this actual air fuel ratio is like 1:13. Okay, ये कितना है, 1:13. Fuel air ratio I am saying. Okay, not air fuel ratio. It is fuel air ratio. Okay. So actual fuel air ratio is 1:13. Okay, and stoichiometric air fuel ratio है मान लीजिए 1:14.8. ये कितना है, 1:14.8. So what you will get? You will get a quantity like 14.8 divided by 13. You will get 14.8 divided by 13. So this is the actual fuel air ratio and this is the stoichiometric fuel air ratio. Okay. So what you will get, friends? You will get phi more than 1. आपको क्या मिलेगा, phi क्या मिलेगा, more than 1. Okay. So what is the conclusion, friends? That you need to know for various objective questions which are related to the equivalence ratio. If phi is greater than 1, अगर phi क्या है, greater than 1 है, if this phi is greater than 1, so mixture कैसा होगा, rich mixture. मिक्सचर कैसा होगा, रिच मिक्सचर। रिच मींस, रिच मींस विच इज लाइक स्ट्रॉन्ग इन फ्यूल, जिसमें फ्यूल पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि फ्यूल पार्टिकल्स आर मोर देन द एयर पार्टिकल, इट मींस दे आर कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू द फ्यूल पार्टिकल प्रेजेंट इन द स्टिक्योमेट्रिक, स्टिक्योमेट्रिक में, ठीक है। और अगर फाई क्या है, लेस देन 1, इफ फाई इज लेस देन 1, ओके, तो मिक्सचर क्या होगा, वो क्या होगा, लीन मिक्सचर। मिक्सचर कैसा होगा, lean mixture. So just by analyzing the value of phi, phi is greater than 1 mixture rich, phi is less than 1 mixture क्या होगा, lean. और तीसरी चीज क्या है, if phi is equal to 1, अगर phi क्या है भाई, equal to 1, phi equal to 1 का मतलब क्या है, मिक्सचर क्या है भाई, मिक्सचर स्टिक्योमेट्रिक ही है। मिक्सचर कैसा है, स्टिक्योमेट्रिक मिक्सचर ही है, मतलब केमिकली करेक्ट मिक्सचर है, ठीक है। आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर व्हाट इज phi equivalence ratio, and if it is more than 1, if it is equal to 1, less than 1, which type of mixture you will get. Okay, second information I think you know, again because it is required, I will tell you. if air fuel ratio, देखो अगर मैं air fuel ratio की बात करता हूँ, air fuel ratio, ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो अगर मैं लिखता हूं, देखो 13:1, लिखता हूं 16:1, 18:1, ओके, या मैं ऊपर लिख देता हूं 12:1, ओके। सो देखो इनमें सब में ये क्या है, देखो ये क्या है, एयर क्वांटिटी, ये क्या है, फ्यूल, एयर क्वांटिटी फ्यूल। इसमें एयर क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, फ्यूल तो उतना ही है। इसमें एयर क्वांटिटी क्या है, कम है, फ्यूल क्या है, उतना ही है। इट मीन कौन सा इसमें रिच है, रिच इन फ्यूल कौन सा है, ये वाला। नंबर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 18:1, 12:1 है, तो नंबर तो डिक्रीज कर रहा है, बट क्या है, रिचनेस इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं इधर से नीचे से ऊपर बोलूं तो रिचनेस बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे बोलूं तो लीननेस बढ़ रही है। ऊपर से नीचे क्या बढ़ रही है, लीननेस, ओके, और नीचे से ऊपर क्या बढ़ रही है, रिचनेस, ओके। नंबर डिक्रीज कर रहा है बट रिचनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आई थिंक यू नो अबाउट इट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो ऑन फ्लेम स्पीड। अब हम इस पे आते हैं कि फ्लेम स्पीड का एयर फ्यूल रेशियो का फ्लेम स्पीड पे क्या इफेक्ट है। ओके, सो फ्रेंड्स इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है, क्या ऑब्जर्व किया गया है कि टाइम टेकन, अगर मैं बात करूं टाइम टेकन टू ट्रेवल द फ्लेम, टाइम टेकन बाय ट्रेवल द फ्लेम, या फ्लेम स्पीड की मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां पे लूं एयर फ्यूल रेशियो, यहां पे क्या ले लूं मैं, या फ्यूल एयर रेशियो, या फाई ले लो। यहां पे क्या ले लिया मैंने, टाइम, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, फाई। टाइम वर्सेस फाई, टाइम वर्सेस इक्विवेलेंस रेशियो का मैं प्लॉट करता हूं, तो मेरे को कुछ ही ऐसा प्लॉट मिलता है।
कुछ क्या मिलता है, ऐसा प्लॉट मिलता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिसपे मिनिमम टाइम लगता है, जिसपे क्या लगता है, मिनिमम टाइम, फ्लेम स्पीड मतलब सबसे ज्यादा मिलेगी, फ्लेम स्पीड सबसे ज्यादा मिलेगी तभी तो मिनिमम टाइम लेगा। कंबशन जो फ्लेम प्रोपेगेशन के लिए जो टाइम है दैट इज मिनिमम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम दैट इज मिनिमम। ओके, किस पॉइंट पे मिलता है आपको, जो जब ये फाई आपको मिलता है कितना, ये क्या है फाई, फाई आपको अप्रोक्सीमेटली 1.1 से लेके 1.2 तक जो मिलता है, मिक्सचर क्या हो, स्लाइटली रिच हो, slightly rich. I think you can understand when phi is more than 1 it is rich. तो phi 1.1 से 1.2 पे जब आपको phi मिलता है तो टाइम क्या मिलता है आपको, सबसे कम। ये जो टाइम है वो क्या मिलता है, सबसे कम। देखो यहाँ पे क्या है, देखो इधर क्या है, फाई क्या है, लेस देन 1, इधर क्या है, फाई ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 है तब भी टाइम क्या है, ज्यादा है। ये क्या है, वेरी लीन मिक्सचर, ये क्या है, बहुत ही लीन मिक्सचर। अगर लीन मिक्सचर ले लोगे तो वो टाइम ही बहुत ज्यादा ले लेगा, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम में क्या ले लेगा, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इट मींस क्या है, आपका इंजन इतना ज्यादा स्लो बनेगा, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड इंजन हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंजन की प्रोपेगेशन क्या है, बहुत स्लो है, जो फ्लेम प्रोपेगेशन इज वेरी स्लो, तो मींस क्या होगा, इंजन स्पीड विल बी वेरी लेस, इंजन इतना स्पीड बन नहीं पाएगा। अगर फ्लेम स्पीड क्या है, ज्यादा है, इट मींस यू कैन प्रोड्यूस हाई स्पीड इंजन, आपके पास क्या बना सकते हो, हाई स्पीड इंजन बना सकते हो, ठीक है। सो दैट रिलेशन यू नीड टू नो, अदरवाइज ये चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस चार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो फ्यूल एयर रेशो, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब इसको अगर मैं कहूं कि ये घटता है बढ़ता है, वो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप अपने आप निकाल सकते हो, लिख लेना उसको। मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैंने आपको चार्ट किस लिए दिखाया, कि जब फाई इक्वल टू 1.1 से लेके 1.2 तक होता है तो फ्लेम स्पीड मैक्सिमम होती है। फ्लेम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। फ्लेम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। अब अगर इससे ज्यादा आप इक्विवेलेंस रेशियो बढ़ाओगे देन अगेन फ्लेम स्पीड विल डिक्रीज, और अगर इससे कम करोगे देन अगेन फ्लेम स्पीड विल डिक्रीज, यू विल गेट ए फ्लेम स्पीड मैक्सिमम मींस द मिनिमम टाइम यू विल टेक गेट एट ए फाई when it is equal to 1.1 to 1.2. Okay, I think it is clear. Let's move to next point. Turbulence we have discussed, air flow ratio we have discussed, pressure and temperature. What is the role of pressure and temperature in flame speed? Flame speed, ठीक है। अब देखो अगर इंजन में टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर या टेम्परेचर, देखो अगर प्रेशर ज्यादा है, चार्ज का प्रेशर ज्यादा है, इट मींस टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। That's why I have written these parameters like combined, pressure and temperature. If the pressure and temperature of the charge is higher, अगर प्रेशर और टेम्परेचर चार्ज का क्या है, हाइयर है, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो की वजह से या सुपर चार्जिंग की वजह से, किसी भी वजह से, इफ दैट प्रेशर रेशियो इज हाइयर, ओके, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, देर विल बी मोर हीट ट्रांसफर। अगर प्रेशर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, देर विल बी मोर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा तो फ्लेम स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रेशर टेम्परेचर अगर बढ़ता है इनसाइड इंजन में तो फ्लेम स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है, बट नोकिंग नहीं इंक्रीज करती, नोकिंग इंक्रीज करती है, बल्कि नोकिंग तो हमें डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि फ्लेम स्पीड बढ़ने से, हम तो बोलते हैं ना फ्लेम स्पीड बढ़ने से नोकिंग डिक्रीज करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से नोकिंग क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, बट फ्लेम स्पीड बढ़ती है। तो रिलेशनशिप ऑफ फ्लेम स्पीड इज लाइक विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्लेम स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है, बट विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है, the charge temperature will also increase ना, and there are chances that it can reach to its pre-ignition temperature. flame speed तो बढ़ गई, बट ये और ज्यादा भूखा हो गया, मतलब इसका अब फ्लेम स्पीड तो बढ़ गई है, मतलब बंदा तो तेज आ रहा है बट इसकी पेशेंस कम है। बंदा तेज आ रहा है बट इसकी पेशेंस क्या है, कम हो गई है। कम क्यों हो गई है, क्योंकि सीवियर इसको क्या लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है। सीवियरली क्यों लगी है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या था, जो चार्ज है उसका टेम्परेचर क्या था, कम ज्यादा हो गया है। सिलेंडर वोल्स की वजह से या इंजन के अंदर जो प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। इट मींस उसके जो गैप है, गैप बिटवीन इट्स टेम्परेचर और जो क्या है उसका प्री इग्निशन टेम्परेचर, दैट गैप इज वेरी लेस, और यू कैन से दैट इट रीच दैट पर्टिकुलर प्री इग्निशन टेम्परेचर, कि वो उस प्री इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर गया, रीच कर गया है, ठीक है। तो वो फ्लेम अगर स्पीड पे भी आ रही है बट वो फिर भी क्या कर जाएगा, ऑटो इग्नाइट कर जाएगा, ओके। सो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर नोकिंग की टेंडेंसी को तो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बट फ्लेम स्पीड को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। फ्लेम स्पीड क्या होती है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर फ्लेम स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। what is the reason, because heat transfer will increase, heat transfer क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, okay, and you know flame transfer is due to flame propagation is due to the transfer of heat and diffusion, okay। so next is compression ratio। अब compression ratio का क्या होना चाहिए भाई, फ्लेम स्पीड के ऊपर compression ratio का क्या इफेक्ट आना चाहिए। विद द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो यू नो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। प्रेशर टेम्परेचर दोनों कंप्रेशन रेशियो से बढ़ने से क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो फ्लेम स्पीड भी क्या करेगी, बढ़ेगी।
विद द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो फ्लेम स्पीड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. Okay, why? Because the pressure and temperature both increase with the increase in the compression ratio. Okay, next is engine output. इंजन आउटपुट. अब देखो बच्चा इसको लिंक कैसे नहीं कर पाता, समझता है इंजन आउटपुट फ्लेम स्पीड क्या मतलब है इसका, क्या लिंक है. लिंक क्या है बच्चे, अगर इंजन आउटपुट बढ़ता है इट मींस जो आपका प्रेशर है, आपको जो इंजन बनाना पड़ेगा वो हाई पावर प्रोड्यूस करेगा. इंजन आउटपुट ज्यादा है इट मींस यू आर प्रोड्यूसिंग दैट पावर ना. तो जो पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हो इट मींस यू रिक्वायर हायर प्रेशर इनसाइड द इंजन. एक डीजल इंजन है जो छोटा इंजन है, लेस आउटपुट का है. डीजल इंजन है हाई पावर का है. हाई पावर का इंजन है तो उसमें प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर, क्योंकि ज्यादा फ्यूल कंबशन होगा ना. छोटा इंजन है जिसकी कम पावर है इट मीन उसमें फ्यूल कंबशन क्या हो रहा है, कम कंबशन हो रहा है. कम कंबशन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, लेस प्रोड्यूस होगा. टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, प्रेशर ज्यादा नहीं होगा. एक इंजन है जिसकी आउटपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट जो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा फ्यूल कंबशन हो रहा है. ज्यादा फ्यूल कंबशन इट मींस उसका जो टेम्परेचर होगा और उसका जो प्रेशर होगा दैट इज हाई. ओके, एक हाई कैपेसिटी आउटपुट इंजन है उसके लिए कूलिंग भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है आपको. व्हाई? बिकॉज इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर आर हाई. टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तभी तो आपको कूलिंग ज्यादा करनी पड़ती है. एक इंजन क्या है विच इज हैविंग हाई आउटपुट, हाई कैपेसिटी इंजन की आपको कूलिंग क्या करनी पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है. ओके, सो विद द इंक्रीज इन इंजन आउटपुट, इंजन आउटपुट के बढ़ने से इनसाइड इंजन प्रेशर टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज. इंजन के अंदर का जो प्रेशर टेम्परेचर इट विल आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंजन आउटपुट. सो वीएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा. इससे भी वीएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा. टर्बुलेंस से भी बढ़ेगा. ठीक है, इसका तो मैंने फ्यूल एयर रेशियो बता दिया. प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, मैं सबकी बढ़ने की बात कर रहा हूं. टर्बुलेंस बढ़ रहा है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, इंजन आउटपुट बढ़ रही है, तो फ्लेम स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी. ठीक है, इंजन स्पीड, इंजन स्पीड देखो, इंजन स्पीड अगर बढ़ेगी तो फ्लेम स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी. व्हाई? टर्बुलेंस बढ़ेगा. अगर इंजन स्पीड बढ़ेगी तो इट मींस टर्बुलेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. इफ इंजन स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा, इट मींस देयर विल बी हाई टर्बुलेंस इनसाइड द कंबशन चैम्बर. सो इन फ्लेम स्पीड, टर्बुलेंस के इंक्रीज होने से क्या होता है, फ्लेम स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो विद द इंक्रीज इन इंजन स्पीड फ्लेम स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी. एंड इवन विद द इंक्रीज इन इंजन स्पीड जो रिलेशन होता है इंजन स्पीड का और टर्बुलेंस का, या इंजन स्पीड का या वीएफ का, वेलोसिटी ऑफ द फ्लेम स्पीड या फ्लेम स्पीड का, ये दोनों लीनियरली वेरी करते हैं. दोनों क्या करते हैं, लीनियरली क्या करते हैं, वेरी करते हैं. रफली अगर मैं आपको बता दूं कि इंजन स्पीड को अगर आप डबल कर देते हो ना, इंजन स्पीड को क्या करते हो, डबल, तो जो टाइम रिक्वायर्ड है फ्लेम प्रोपेगेशन के लिए वो आधा हो जाता है. इफ इंजन स्पीड इज डबल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम दैट विल बी हाफ, वो आधा हो जाता है. मतलब स्पीड इतनी बढ़ जाती है. ठीक है, दोनों क्या करते हैं, लीनियरली वेरी करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंजन साइज. ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज. ओके, इंजन साइज, इंजन साइज का क्या इफेक्ट होता है फ्लेम स्पीड पे. ठीक है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंजन साइज ऑन फ्लेम स्पीड, देखो इंजन साइज का फ्लेम स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. इंजन साइज बढ़े घटे फ्लेम स्पीड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता. मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लेम स्पीड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम फॉर प्रोपेगेशन दैट विल इंक्रीज. अगर इंजन स्पीड जितनी भी हो, अगर मैंने इंजन का साइज बढ़ा दिया, मान लीजिए स्पीड 50 है, ऑलमोस्ट इट विल रिमेन 50 इफ इंजन साइज विल इंक्रीज. साइज इंक्रीज डिक्रीज करने से फ्लेम स्पीड पे कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आता. Getting my point, friends? With the increase in engine size or decrease in engine size, there is no considerable effect on flame speed we can observe. कोई considerable effect हमें नहीं मिलता. But क्या होता है, with the increase in engine size क्या होता है, flame propagation time will increase. फ्लेम प्रोपेगेशन का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्यों? क्यों आपको पता ना वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो वेलोसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना. विद द इंक्रीज इन इंजन साइज डिस्टेंस तो बढ़ गया ना. अब फ्लेम को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. तो अगर टाइम पूछे तो टाइम तो बढ़ जाएगा, बट अगर पूछे कि फ्लेम स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट, फ्रेंड्स? सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर ऑन विच द फ्लेम स्पीड विल डिपेंड. ओके, जिनके ऊपर क्या करती है, फ्लेम स्पीड क्या करती है, डिपेंड करती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स अब नॉर्मल कंबशन की, और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट अब नॉर्मल कंबशन और नॉकिंग. ओके, सो इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मल कंबशन हमें पता चल गई है. ठीक है, अब नॉर्मल कंबशन क्या होता है भाई, व्हाट इज अब नॉर्मल कंबशन फ्रेंड्स? बिफोर रीचिंग दी फ्लेम फ्रंट, देखो यहां पर फ्लेम फ्रंट के पहुंचने से पहले ही, ठीक है, बिफोर रीचिंग दी फ्लेम फ्रंट के यहां पहुंचने से पहले ही ये वाला जो मिक्सचर है, देखो ये वाला जो मिक्सचर है ये क्या कर गया है, ऑटो इग्नाइट कर गया है.
ये क्या कर गया है, ऑटो इग्नाइट। और ये जो सी सी डैश दिख रहा है आपको, देखो ये क्या है, ये तो फ्लेम फ्रंट जो आपका ट्रेवल कर रहा है। बी बी डैश क्या है, जो फ्लेम फ्रंट ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डी बी डैश क्या है, फ्लेम फ्रंट विच इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। और यहां पे जो फ्यूल था ये ऑटो इग्नाइट हो गया है। ये फ्यूल क्या हो गया भाई, ऑटो इग्नाइट। ये क्या हो गया है, ऑटो इग्नाइट, ठीक है। ऑटो ऑटो इग्नाइट हो गया तो क्या हो गया भाई, अब ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये अनबर्न्ड चार्ज है। ये क्या है, अनबर्न्ड चार्ज। ये जो आपको बी बी डैश और सी सी डैश, ये जो सी सी डैश क्या है आपका, ये सेकंड फ्लेम फ्रंट है। दिस इज फर्स्ट फ्लेम फ्रंट, दिस इज अनदर फ्लेम फ्रंट। ये भी क्या आपका फ्लेम फ्रंट है, क्योंकि ये किसको सेपरेट कर रहा है, बरंट चार्ज को और अनबरंट चार्ज को। ये क्या हो चुका, ब्रंट हो चुका, ये ब्रंट हो चुका भाई। जब हम बात कर रहे हैं अब नॉर्मल कंबशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब नॉर्मल कंबशन की, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो ब्रंट हो चुका। अब ये क्या है बीच में, अनब्रंट चार्ज। अब यहां पे एक नया फ्लेम फ्रंट बन गया, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। और जब कोलैप्स कर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर पल्सेस जनरेट होंगी, जो गैस है इट विल स्टार्ट वाइब्रेशन, कंप्रेशन और रेयर फंक्शन होगा किसमें अंदर, इंजन कंबशन चैम्बर के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर पल्सेस बनेंगे और दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग योर इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर क्या करेगा, आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। एंड यू कैन ऑब्जर्व ए साइन, आपको एक साउंड आप क्या कर पाएंगे, लिसन कर पाएंगे। उस साउंड से आप पता कर सकते हैं कि नोकिंग अगर इंजन में हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सो दैट साउंड इज बेसिकली वन ऑफ द पैरामीटर टू ऑब्जर्व नोकिंग इज हैपनिंग इनसाइड द इंजन और नॉट, ओके। बिकॉज साउंड तो जनरेट होगी ही होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप अब नॉर्मल कंबशन को कैसे दिखाते हैं, देखो अब नॉर्मल कंबशन होगी तो क्या होगा, देखो कंप्रेशन, यहां पे क्या किया आपने, इग्निशन दे दिया, इग्निशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगी, फ्लेम प्रोपेगेशन होगा। फ्लेम प्रोपेगेशन होने के बाद कहीं ना कहीं पे आपको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर। बट ये प्रेशर थोड़ा और ऊपर जा सकता था, ये प्रेशर थोड़ा और ऊपर जा सकता था अगर ये क्या होती, ये क्या होती, नोकिंग नहीं होती, ठीक है। अब नोकिंग होगी तो क्या होगा, एक एक क्या होगी, नया फ्लेम फ्रंट बन गया है और उसकी वजह से कोलैप्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर वेव जनरेट होगी, मतलब प्रेशर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। प्रेशर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वेव्स वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, ठीक है। और दैट वाइब्रेशंस कैन डैमेज योर इंजन, वो हमारे इंजन को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो बस इस तरह से आपको समझना है, ये क्या है हमारा अबनॉर्मल कंबशन, ये क्या है हमारा अबनॉर्मल कंबशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, अबनॉर्मल कंबशन इज नोन एज नोकिंग। This abnormal combustion is known as knocking in SI engine. Okay, what is important for us, friends? This is our last topic for today's class. Various factor which influence knocking. Okay, very very important. क्योंकि यहां से आपको किसी भी एग्जाम में जहां से आईसी इंजन पूछा जाता है, यू विल सी a question which is related to this. Okay, अब देखो मैंने कोई डिटेल नहीं लिखी है इसमें, बिकॉज आई माई एम इज टू प्रोवाइड यू दी करंट। ओके, क्या इसका निचोड़ है वो मेरे को आपको प्रोवाइड करना है कि कैसे फैक्टर है। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को देख के आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक नोट्स, ओके, अकॉर्डिंगली। So what are the various effect of various parameter on knocking? Okay, now you will be able to answer quickly, okay, because you know what is normal combustion, how normal combustion is happening, okay, easily you can answer. So first factor is like temperature and density. पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। टेम्परेचर और डेंसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी के लिए एक बात समझ लो भाई, कोई भी फैक्टर जो टेम्परेचर बढ़ा दे इंजन के अंदर, कोई भी फैक्टर जो टेम्परेचर बढ़ा दे और डेंसिटी बढ़ा दे, तो वो नोकिंग को बढ़ाएगा। एनी फैक्टर विच विल इंक्रीज टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द चार्ज इनसाइड द कंबशन चैम्बर, इट विल इंक्रीज नोकिंग टेंडेंसी। और नोकिंग टेंडेंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब मैं क्या क्या पूछ, अब मैं आपको कहूं, मेरी बात समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, एनी फैक्टर विच विल इंक्रीज टेम्परेचर एंड डेंसिटी इनसाइड द कंबशन चैम्बर, इट विल इंक्रीज नोकिंग टेंडेंसी। वो नोकिंग टेंडेंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कोई भी फैक्टर वो जो टेम्परेचर और डेंसिटी को डिक्रीज कर दे, इट मीन वो नोकिंग टेंडेंसी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। सो ऐसे कौन से फैक्टर जो टेम्परेचर और डेंसिटी को बढ़ाते हैं, देखो पहला फैक्टर है कंप्रेशन रेशो। क्या फैक्टर है, कंप्रेशन रेशो, सुपर चार्जिंग। चलो पहले कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो नोकिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। विद द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशो नोकिंग टेंडेंसी ऑफ ऐसा इंजन विल इंक्रीज। विद द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशो नोकिंग टेंडेंसी ऐसा इंजन की क्या करती है, इंक्रीज करती है। सेकेंड पैरामीटर सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग, अब देखो सुपर चार्जिंग लिख दो या मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड लिख दो,
सुपर चार्जिंग लिखते हैं या मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड? क्योंकि अगर सुपर चार्जिंग हम करते हैं, सुपर चार्जिंग क्यों करते हैं भाई? जस्ट टू इंक्रीज द मास ऑफ द चार्ज इंडक्टेड, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है। सुपर चार्जिंग से हम क्या करते हैं, बेसिकली गैस को क्या कर रहे हैं, जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। इसमें भी हम सुपर चार्जिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे इंजन में सुपर चार्जिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। अगर सुपर चार्जिंग करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। विद द इंक्रीज इन डेंसिटी नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सुपर चार्जिंग अगर आप कर रहे हैं या मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सुपर चार्जिंग बढ़ेगा तो मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। इनलेट टेम्परेचर ऑफ द चार्ज। इनलेट टेम्परेचर ऑफ द चार्ज से मतलब क्या है, देखो कई बार हम क्या करते हैं फ्रेंड्स पेट्रोल इंजन में, इफ वी वांट टू लाइक मेक ए मिक्सचर ऑफ ए फ्यूल विच इज नॉट दैट मच वोलेटाइल, वो जितना अच्छा वोलेटाइल फ्यूल नहीं है। पेट्रोल तो बहुत अच्छा वोलेटाइल फ्यूल है, ठीक है, गैसेस भी इजीली मिक्सअप हो जाती है। बट से इफ यू वांट टू यूज एल्कोहल, आपको कोई एल्कोहल यूज करना है, एल्कोहल बेस्ड फ्यूल यूज करना है। अब एल्कोहल की वोलेटिलिटी क्या है, दैट इज लेस देन यू कैन से पेट्रोल। ओके, सो व्हाट यू कैन से, लाइक ऐसा कोई फ्यूल है जिसकी वोलेटिलिटी कम है। अब वोलेटिलिटी कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा लो ग्रेड फ्यूल यूज करना है विच इज हैविंग लो वोलेटिलिटी। इट इज अ लिक्विड फ्यूल बट इट इज हैविंग लो वोलेटिलिटी। तो आप क्या करते हैं, आप उसका थोड़ा सा प्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जो इनलेट टेम्परेचर है, आप चार्ज का, एयर का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ही एयर कार्बोरेटर में जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो फ्यूल जब आप स्प्रे कर रहे हो नोजल से, तो उसकी वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है। टेम्परेचर की वजह से वो मिक्सचर आपको क्या मिलता है, थोड़ा यूनिफॉर्म मिलता है। तो ऐसा हम कई बार करते हैं। इनलेट टेम्परेचर चार्ज का हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं क्यों, सो दैट वी कैन यूज सम लो ग्रेड फ्यूल ऑल्सो। ओके, सो अगर इनलेट टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, इनलेट टेम्परेचर चार्ज का अगर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मैं क्यों बता रहा, क्यों बता रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं हम इनलेट चार्ज, टू गेट द होमोजेनियस मिक्सचर। If we are using some low grade fuel and to get the homogeneous mixture, we will simply generally we will increase the temperature of the इनलेट फ्यूल। और ये तो बड़ा आसान है, क्या करो, उसको थोड़ा सा कंबशन, जो आपका एग्जॉस्ट गैसेस है उनके आसपास से निकाल दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट उसकी वजह से क्या होगा भाई, टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, बट क्या होगी, नोकिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो चार्ज आ रहा है उसका इनलेट टेम्परेचर ही पहले से ज्यादा है। इट मीन्स उसकी नोकिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, मीन्स उसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो गैप क्या है, बहुत कम है। तो जब आप उसको कंप्रेस करोगे, इनिशियल टेम्परेचर इज हाई एंड व्हेन यू विल फर्दर कंप्रेस दैट चार्ज which is initially at high temperature, so its knocking tendency will increase. Okay, so हम बढ़ा तो सकते हैं, होमोजीनियस कर तो सकते हैं मिक्सचर लो ग्रेड फ्यूल को, बट नोकिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिजायरेबल। इनलेट टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, इनलेट टेम्परेचर चार्ज का हाई नहीं होना चाहिए, उससे नोकिंग टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स, टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। अगर वॉल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नोकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्योंकि जो चार्ज है, जो आपका जो अनबर्न्ड चार्ज है, वो कहां पे चिपका हुआ है भाई, इट इज लाइक स्टिकिंग एट दी वॉल्स ऑफ द सिलेंडर ओनली ना। तो देयर विल बी लाइक ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द अनबर्न्ड चार्ज एंड द इंजन वॉल्स। इंजन वॉल्स के बीच में और अनबर्न्ड चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और अगर इंजन वॉल्स का टेम्परेचर क्या है, इट इज हाई, सो द चार्ज अनबर्न्ड चार्ज टेम्परेचर विल इंक्रीज। और अगर अनबर्न्ड चार्ज का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इट विल इंक्रीज नोकिंग टेंडेंसी। तो सिलेंडर वॉल्स या कूलिंग इफेक्टिव नहीं है, देयर इज नो इफेक्टिव कूलिंग इनसाइड द इंजन, और द टेम्परेचर ऑफ द इंजन सिलेंडर वॉल्स आर हाई, तो नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट है स्पार्क टाइमिंग एंड पावर आउटपुट। स्पार्क टाइमिंग, देखो स्पार्क टाइमिंग, स्पार्क टाइमिंग से क्या मतलब है, देखो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज। ओके, स्पार्क टाइमिंग से क्या मतलब है, देखो अगर ये स्पार्क, ये जो स्पार्क है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहां कर देंगे, ये जो स्पार्क है अगर आप इसको थोड़ा सा यहां कर देंगे, ठीक है, स्पार्क को अगर आप क्या कर देंगे, देखो दो चीजें हैं, एक तो आप यहां कर दें, स्पार्क को क्या कर दें, आप यहां कर दें, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है, ये आप कर दे थोड़ा सा यहां पे, ठीक है। तो एक को क्या बोलते हैं, स्पार्क एडवांस, एक को क्या बोलते हैं, स्पार्क रिटार्ड। जब अगर आपने स्पार्क को थोड़ा सा यहां कर दिया, मतलब आप एडवांस कर रहे हैं, स्पार्क को क्या कर रहे हैं, आप एडवांस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, आप स्पार्क को क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पार्क को थोड़ा रिटार्ड कर दें, स्पार्क टाइमिंग को क्या कर दें, थोड़ा सा रिटार्ड, तो स्पार्क टाइमिंग को अगर आप रिटार्ड कर देंगे तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है ये आपको थोड़ा सा इधर मिलेगा, थोड़ा सा कहां मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज स्पार्क आपने क्या कर दिया, रिटार्ड कर दिया। तो क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जब यहां पे पूरा फ्लेम प्रोपेगेट होगा तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। देखो अगर आप इसको एडवांस करोगे,
अगर आपने क्या कर दिया, एडवांस कर दिया, बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया, तो हो सकता है आपको जो हाई प्रेशर है वो यहीं पे मिल जाए, टीडीसी से टीडीसी पे मिल जाए। तो ये टीडीसी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। यहाँ क्या है, बीडीसी, ये क्या है, टीडीसी। अभी तक क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, मतलब आप चार्ज को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उससे पहले ही अगर आपको हाई प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे तो क्या होगा, नुक्लियर टेंडेंसी बढ़ेगी। तो स्पार्क के एडवांस करने से, मतलब अगर आप स्पार्क को नॉर्मल टाइम पे ना करके, यहां पे नॉर्मल टाइम पे ना करके, अगर आप स्पार्क को एडवांस कर रहे हैं, तो ये जो कर्व है ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा किधर, टीडीसी की तरफ। ठीक है, तो उससे नुक्लियर टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा रिटार्ड कर देंगे, अगर आप इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा रिटार्ड कर देंगे, स्पार्क टाइमिंग को क्या कर देंगे, थोड़ा रिटार्ड कर देंगे, थोड़ा लेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये थोड़ा सा कर्व क्या हो जाएगी, इट विल फर्दर शिफ्ट टुवर्ड्स दिस रीजन, इस रीजन की तरफ क्या हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और उससे नुक्लियर टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो हाई प्रेशर है ये इतना ज्यादा राइज नहीं होगा जितना इस केस में हो रहा है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल टीडीसी के पास होगी तो और ज्यादा हाई प्रेशर राइज होगा ना, थोड़ा सा टीडीसी के नीचे हो रहा है तो यहां पे हो रहा है। अगर थोड़ा सा और आप इसको रिटार्ड कर देंगे, इफ यू विल रिटार्ड दिस स्पार्क टाइमिंग, तो दिस प्रेशर विल बी समवच लोअर, प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा एज कंपेयर टू दिस अर्लियर केस। एडवांस करने से प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, रिटार्ड करने से प्रेशर टेम्परेचर घटेगा। तो दैट्स व्हाई विद, इफ वी वांट टू से इंक्रीज डिक्रीज द नोकिंग, अगर हम नोकिंग को क्या करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमें स्पार्क को क्या करना पड़ता है, रिटार्ड करना पड़ता है। स्पार्क को क्या करते हैं, रिटार्डिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्पार्क रिटार्डिंग, एडवांसिंग नहीं करते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंजन पावर, पावर आउटपुट। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, टेम्परेचर डेंसिटी से रिलेटेड, दैट इज आउटपुट पावर। अब देखो आउटपुट पावर अगर बढ़ेगी, फ्लेम स्पीड तो बढ़ रही थी, बट विद द इंक्रीज इन आउटपुट पावर द प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग, प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया है कि विद द इंक्रीज इन आउटपुट पावर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज, एंड विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर द नोकिंग टेंडेंसी क्या होगी, इट विल इंक्रीज। सो नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, अगर आपको नोकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करनी है तो क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर कम होनी चाहिए, ये आपका रिटार्ड होना चाहिए। टेम्परेचर वॉल्स का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इनलेट टेम्परेचर कम होना चाहिए, कंप्रेशन रेशियो कम होना चाहिए, सुपर चार्जिंग भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, यू कैन से ऑप्टिमम होनी चाहिए। ओके, सो कब बढ़ता है कब घटता है, आई थिंक यू विल बी इजिली एबल टू आंसर। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं फ्रेंड्स, टाइम फैक्टर। देखो ये तो थे हमारे टेम्परेचर फैक्टर, सेकंड क्या है हमारा, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर में क्या क्या आता है भाई, एक आता है टर्बुलेंस, इंजन स्पीड, इंजन साइज और कंबशन, कंबशन चैम्बर शेप एंड लोकेशन ऑफ द स्पार्क प्लग। ओके, सो आई थिंक यू कैन इजिली आंसर टर्बुलेंस। टर्बुलेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो टर्बुलेंस का प्रेशर टेम्परेचर से तो लेना देना नहीं है, टर्बुलेंस के रिलेशन किससे, हीट ट्रांसफर से। इफ टर्बुलेंस विल इंक्रीज द हीट, देयर विल बी लाइक फ्रीक्वेंट हीट ट्रांसफर। ओके, और अगर हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, फ्लेम स्पीड बढ़ेगी, और क्या होगा, द नोकिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। सो विद द इंक्रीज इन टर्बुलेंस, नोकिंग टेंडेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर टर्बुलेंस डिक्रीज कर रहा है तो नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो एक्चुअली वी विल डिजाइन ए इंजन लाइक दिस, देयर विल बी लाइक गुड टर्बुलेंस इनसाइड दी कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर को हम कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि हमें वहां पे कुछ अच्छा टर्बुलेंस मिले। ठीक है, सो विद द इंक्रीज इन टर्बुलेंस, नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट इज इंजन स्पीड। इंजन स्पीड, इंजन स्पीड से क्या होगा भाई, देखो जब लो स्पीड होती है, लो स्पीड, लो स्पीड है तो टर्बुलेंस क्या है, कम है, मतलब बंदा स्लोली स्लोली आ रहा है। स्लो स्पीड है तो मतलब क्या है, बंदा स्लोली स्लोली आ रहा है, तो ऑटो इग्निशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है ना। अगर बंदा स्पीड पे आएगा, फास्ट आएगा, तो ऑटो इग्निशन के चांसेस क्या है, कम है। तो विद द इंक्रीज इन इंजन स्पीड, नो की टेंडेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो नो की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट इज इंजन साइज। इंजन साइज, ओके, अब इंजन साइज का फ्लेम स्पीड से तो लेना देना नहीं था, फ्लेम स्पीड से तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं था, फ्लेम स्पीड तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। बट विद द इंक्रीज इन इंजन साइज, टाइम विल इंक्रीज, टाइम क्या था, इंक्रीज करेगा। अब देखो, अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो बंदा है, जो बंदा जो सर्व कर रहा है, अब उसकी स्पीड तो अच्छी है, बट किसी ना किसी डिस्टरबेंस की वजह से वो टाइम ज्यादा ले रहा है। उसकी विलिंगनेस उतनी है, वो स्पीड उसकी अच्छी है, बट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस वो क्या है उसका, क्योंकि मान लीजिए साइज, लाइन लेंथ ही बहुत ज्यादा है, जो लाइन है इंजन का साइज बहुत ज्यादा, मतलब जो लाइन जिस पंक्ति में आप बैठे हो, दैट लेंथ इज वेरी लार्ज, तो ऑब्वियसली स्पीड उसकी ज्यादा भी हो तो आप उतना पेशेंस आप नहीं रख पाओगे, तो क्या हो जाओगे, ऑटो इग्नाइट हो जाओगे। तो इंजन साइज अगर बढ़ता है तो नोकिंग टेंडेंसी बढ़ती है। with the increase in engine size, Noki tendency will increase. Why? Because the time for the propagation of the flame will increase. Okay, with the increase in the engine size, the time required for the propagation of the flame will increase.
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर शेप, ओके। अब देखो कंबशन चैम्बर की बहुत सारी शेप हो सकती है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इफ इट इज रिक्वायर्ड सेपरेटली वी विल डिस्कस वेरियस कंबशन चैम्बर शेप। आपको समझना क्या है कि कंबशन चैम्बर की शेप कैसी होनी चाहिए कि सो दैट फ्लेम विल फास्टली मूव, क्विकली मूव, ओके, एंड इट विल ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस। उसको डिस्टेंस ट्रेवल क्या करना हो, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो। द कंबशन चैम्बर शेप विल बी लाइक सच लाइक दैट इट विल द फ्लेम विल टेक least time, okay, or the distance will be less, okay, or generally what you can say, ideally the shape of the combustion chamber will be like a spherical sphere की तरह होनी चाहिए, so that it will take minimum distance. So what you can say, the combustion chamber shape, combustion chamber की shape, सिलेंडर की shape नहीं बता रहा हूं मैं, combustion chamber की shape कैसी होनी चाहिए, it will be something like spherical, okay, so that there will be like minimum distance दैट फ्लेम नीड्स टू ट्रेवल, ताकि डिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, जो फ्लेम को क्या करना है, ट्रेवल करना है, ओके। सो कंबशन चैम्बर शेप को हम डिजाइन करते हैं, हम इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि हमें कम से कम डिस्टेंस, फ्लेम को कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। नेक्स्ट इज स्पार्क प्लग, लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, ठीक है। अब देखो आपको पता है स्पार्क प्लग भी जब स्पार्क करता है या एंड इट इज प्रेजेंट इन कंबशन चैम्बर, सो टेम्परेचर क्या होता है स्पार्क प्लग का, इट इज हाई। स्पार्क प्लग का टेम्परेचर क्या होता है, हाई, पहली चीज। दूसरा क्या है कि जो स्पार्क चाहिए, तो स्पार्क स्पार्क प्लग को क्या करना है, इट विल इनिशिएट दी स्पार्क, स्पार्क को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, तो वहीं से तो आपका फ्लेम फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो स्पार्क प्लग की पोजीशन सेंट्रली होनी चाहिए। स्पार्क प्लग को कहां पे होना चाहिए, सेंट्रली में। अगर आपका ये कंबशन चैम्बर है तो स्पार्क प्लग को आपको कहां लगाना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। ये आपका क्या है, स्पार्क प्लग, ठीक है। तो यहां से जो स्पार्क निकलेगी तो आपका फ्लेम फ्रंट क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ओके। तो फ्लेम स्पार्क ऐसी जगह पे होना चाहिए ताकि फ्लेम विल faster move, okay, and generally it will be like I say advisable to put like spark plug at the center. spark plug कहां पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, ताकि फ्लेम क्या करे, इजिली वो क्या करे, थ्रू आउट वॉल्यूम क्या कर पाए, मूव कर पाए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, कंबशन कंपोजिशन फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर आर कंपोजिशन फैक्टर, इसमें एक फ्यूल एयर रेशियो और एक क्या है, ऑक्टेन नंबर। अब ये तो आप बड़ा इजीली आंसर कर सकते हैं। फ्यूल एयर रेशियो का कंप्रेशन फैक्टर क्या है, क्या फैक्टर पड़े, क्या इफेक्ट पड़ेगा नोकिंग पे। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि नोकिंग, जब आपका फ्यूल एयर रेशियो कितना होता है, देखो अगर मैं आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंस रेशियो, जब आपका इक्विवेलेंस रेशियो कितना है, 1.1 से 1.2 है। इक्विवेलेंस रेशियो कितना है आपका, 1.1 से 1.2, स्लाइटली रिच है, स्लाइटली रिच है, तो नो की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। वाई, स्लाइटली रिच में नो की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। वाई, बिकॉज द फ्लेम स्पीड विल बी हाई। when the equivalence ratio is 1.1 or 1.2 means the mixture is slightly rich, the Noki tendency will be less due to the high flame speed. high flame speed की वजह से Noki tendency क्या होगी, कम होगी, ओके। नेक्स्ट है भाई octane नंबर। octane नंबर, देखो octane और cetane सेपरेटली वी विल स्टडी बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि octane नंबर क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, ठीक है। सिटेन नंबर क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, देखो ऑक्टेन नंबर कितना हो सकता है फ्यूल का, ऑक्टेन नंबर जो नॉर्मली ये हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 100 के बीच में, नॉर्मली वो इससे ज्यादा भी सकता है। देयर आर सम फ्यूल विच इज हैविंग ऑक्टेन नंबर मोर देन 100, ऐसे भी कुछ फ्यूल्स हैं विच आर हैविंग ऑक्टेन नंबर मोर देन 100, जिनका ऑक्टेन नंबर क्या है, 100 से ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऑक्टेन नंबर अगर बढ़ रहा है, मतलब कोई फ्यूल है, आपको समझना क्या है कि कोई फ्यूल है, ऑक्टेन नंबर बताता क्या है, नोकिंग टेंडेंसी बताता है। ऑक्टेन नंबर इज ए मेजर ऑफ द नोकिंग टेंडेंसी ऑफ द फ्यूल। ये फ्यूल की नोकिंग टेंडेंसी का है मेजर, एक पैरामीटर है। तो अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, मींस अगर कोई फ्यूल है, मान लीजिए कोई P1 है, कोई P2 है, इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, मान लीजिए 92, इसका ऑक्टेन नंबर है 80, तो व्हाट यू कैन से, जस्ट सिंपली बाय एनालाइजिंग द ऑक्टेन नंबर, व्हाट यू कैन से, इसकी जो नोकिंग टेंडेंसी है वो क्या है, कम है। इसकी नोकिंग टेंडेंसी क्या है, कम है। इसकी नोकिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। इसकी नोकिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो आप इसको हाई कंपैरिजन रेशियो पे यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज ए फ्यूल which is having low octane number with high compression ratio, but a fuel which is having high octane number, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या है, ज्यादा है, यू कैन यूज दैट फ्यूल विद हाई कंप्रेशन रेशियो। तो आप इस फ्यूल को हाई कंप्रेशन रेशियो पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मींस यू कैन गेट हाई एफिशिएंसी, यू कैन गेट मोर पावर, ओके। सो इस तरह के फ्यूल्स क्या होते हैं, नॉर्मली कॉस्टली होते हैं, बिकॉज पेट्रोल में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे फ्यूल्स मिला के हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, सो दैट उसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो दो फ्यूल मिल जाते हैं, क्या होता है आपका रेटेड, पावर रेटेड फ्यूल होता है, आपका ऑर्डिनरी फ्यूल होता है। जो रेटेड फ्यूल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो नोकिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, तो पावर आउटपुट आपको क्या मिलती है, अच्छी मिलती है, ओके। सो फ्रेंड दीज आर लाइक
things we have discussed about combustion, stages of combustion. Okay, so friend, this is all about today's class. I think that topic is clear to you. What is combustion, how it is happening in SI engine, what are various stages, what are various terms related. Okay, what is afterburning, what is what is auto ignition, what is ignition lag. Okay, so these things, I think these are clear to you. What is flame front? Okay, what are various factors which affect flame speed, and what are various factors which affect knocking. What is abnormal combustion in detail and crunch I have discussed with you. So friend, thank you very much. Thanks for watching. Have a nice day. Keep preparing.